Good morning all. Today we will start the questions on fundamental period of the signals. Okay. We have discussed these questions in previous class also. I will explain again. Okay. So in that, what is the question? Question is determine whether or not each of the following signals is periodic. Okay. If a signal is periodic, determine its fundamental period. Okay. So first question is what? Cos t plus pi by 4. So how we will define or how we will solve this? Cos t plus pi by 4. Okay. Compare this with cos omega naught t plus pi. Okay. And in the fundamental period, what is the formula? What is the formula? Formula is T naught equal to 2 pi by 4. Okay? That is the formula of fundamental period. Clear? ये चीज क्लियर हुई? देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंपेयर करो उसकी इक्वेशन से. मतलब जो इक्वेशन किस फॉर्म में हो, वो इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा? ओमेगा के फॉर्म में. अगर इक्वेशन ओमेगा के फॉर्म में है ना, अगर इक्वेशन ओमेगा के फॉर्म में है तो हमें क्या निकालना है? ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालना है. हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे? फंडामेंटल पीरियड निकाल पाएंगे. क्लियर? Yes, ma'am. है ना? तो here omega naught is what? Omega naught equal to 1. सबको समझ में आ रहा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है? यस मैम. है ना? इससे कंपेयर करो. Yes, ma'am. हाँ, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 1 है. तो ये क्या हो गया? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1. So this omega naught value is put it on the fundamental period equation or formula. That is what? That is T naught equal to 2 pi by omega naught. We have to put the omega naught value here. So what is our answer? Our answer is T naught equal to 2 pi. Clear? Clear? यस मैम. Okay. And another question, xt equal to sin 2 pi by 3t. Okay. Compare this with sin omega naught t. So what is the value of omega naught? Value of omega naught is 2 pi by 3. Okay. So put in the formula t naught equal to 2 pi by omega naught. So what it is? It is 2 pi upon 2 pi by t. Okay. And this 2 pi cancel out. And our fundamental period is what? Our fundamental period is t. Okay. Clear? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Another question is cos pi by 3t plus sin pi by 4t. In that case, if we have two signals in one question, okay? If we have two signals in one question,
So we solve the both the signals separately. First we solve this. Okay, for this we have to solve, or we have to find the value of omega naught 1. Okay, and then we solve this. Then we solve this. So that is omega 2. Clear? Yes, ma'am. So for cos pi by 3t is what? Cos omega naught 1t. What is the value of omega naught 1? Value of omega naught 1 is pi by 3. ठीक, वैल्यू क्या हो गई हमारी? पाई बाय 3 हो गई. इसका मतलब अगर मैं टी नॉट T1 की वैल्यू फाइंड कर दी तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा 1. ठीक, सो 2 पाई अपॉन क्या वैल्यू है ओमेगा 1 की? पाई बाय 3 है ना. दिस एंड दिस विल कैंसिल and the T1 is what? T1 is 6. Okay, same procedure is used for sin pi by 4. So in that case T2 equal to what? T2 equal to 2 pi by omega 2. Clear? So क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 2 pi by 4 हो जाएगा है ना. पाई बाय 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 2. पाई एंड पाई कैंसिल. ओमेगा T2 इक्वल टू व्हाट? T2 इक्वल टू 8. क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. है ना. यस मैम. ओके, अब इसके बाद जब 2 सिग्नल्स होते हैं तो क्या लिखते हैं हम उनको? सबसे पहले हम लिखते हैं उनको T1 अपॉन T2. T1 T2 की वैल्यूज क्या क्या थी? 6 बाय 8. T1 की वैल्यू 6, T2 की वैल्यू 8. इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया? 3 बाय 4. ओके, 3 बाय 4 करने के बाद क्या हो गया? ये 4T1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. देखो 4T1 इक्वल टू 3T2. क्लियर? और ये क्या है हमारा? ओवरऑल फंडामेंटल पीरियड, दैट इज T0. क्लियर? अब आप क्या करिए? T1 की वैल्यू पुट करिए. T1 की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू क्या थी? 6. तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 एंड 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 है ना. तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? T0 इक्वल टू 24. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर हुआ ये चीज? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? No, ma'am. Okay, next question is what? Next question is xt equal to cos t plus sin root 2t. ठीक है, तो that is x1t and that is x2t. Solve this question like this. करिए सॉल्व. क्या हो जाएगा? देखो cos t है मतलब ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 हो गई है ना. और यहाँ पे sin रूट 2 है तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2 हो गई. अब आप पुट करिए इसको. T1 इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट. तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी? 1. तो वैल्यू क्या आ गई T1 की? 2 पाई आ गई. ऐसे जब T2 को सॉल्व किया 2 पाई बाय रूट 2 है तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 पाई हो जाएगा. कैसे? ऊपर वाले वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 2 है तो क्या लिख सकते हैं बेटा? रूट 2 इंटू रूट 2 है ना. रूट 2 इंटू रूट 2. हाँ, तो एक रूट 2 कैंसिल हो गया. बचा कैसे? रूट 2 पाई. क्लियर?
अब जब T1/T2 करते हो आप, तो आपके पास क्या आता है, √2 आता है। √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? √2 क्या है बेटा? √2 इरेशनल नंबर है। जी मैडम। Yes, ma'am. √2 इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन पीरियोडिक हो गया या ए पीरियोडिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Next question is, using the trigonometric identity sin square theta equal to 1/2 1 minus cos 2 theta. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन बताएगा कोई? क्वेश्चन था हमारा ई था हमारा, देखो x t इक्वल टू साइन स्क्वायर टी है ना। अब x t इक्वल टू साइन स्क्वायर टी को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी ऐसा कुछ नहीं होता। हम साइन स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करते हैं तब जाके हमें क्या मिलती है, ओमेगा की वैल्यू मिलती है। क्लियर? है ना। तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो एक्स टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी हमारा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2t। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा x1t और ये क्या हो गया हमारा x2t। अगर हम x1t की बात करते हैं तो x1t क्या है हमारा, x1t इज अ डीसी सिग्नल। x1t इज अ डीसी सिग्नल। क्लियर? और क्यों है ये डीसी सिग्नल? क्यों है ये डीसी सिग्नल बेटा? क्योंकि इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? इसके साथ क्या नहीं है बेटा, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। है क्या कोई ओमेगा की वैल्यू है क्या, ओमेगा की कोई टर्म है क्या इसके साथ? No, ma'am. है ना, इसके साथ ओमेगा की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए क्या हो गया डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल कैसे होते हैं, डीसी सिग्नल ऐसे होते हैं अपने यूनिट स्टेप सिग्नल के टाइप। ठीक, इनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि इनमें कोई ऑसिलेशन ही नहीं होते, कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं होती है, डायरेक्ट होते हैं। ठीक, 1/2 क्या हो गया, 1/2 इज अ डीसी सिग्नल विद एन आर्बिट्ररी पीरियड, विद एन आर्बिट्ररी पीरियड। ठीक, and x2t is what, x2t is 1/2 cos 2t, so that is our omega value. So omega 2 is what, omega 2 is 2। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओमेगा 2 की वैल्यू 2 हो गई। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 2π/ओमेगा 2 मतलब 2π/ओमेगा 2 मतलब 2π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, पाई बचेगा। ठीक है, एक्स टी इज अ पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी नॉट इक्वल टू पाई। क्लियर हुए इतने क्वेश्चंस? Yes, ma'am. यस मैम। सबको? Yes, ma'am. Okay. So next question is e to the power j π/2 t minus 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, e to the power j ओमेगा नॉट t से। e to the power j ओमेगा नॉट t से कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें एक ही चीज दिख रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज π/2। ओमेगा नॉट t की वैल्यू क्या हो गई, π/2 हो गई। तो 2π/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टी नोट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 4 हो गई। क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, e to the power j π/4 into n, e to the power j ओमेगा, ये जो साइन दिख रहा है ना, ऐसा वाला साइन जो होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो
सेम एज ओमेगा नॉट। क्लियर? ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो गई, पाई बाय 4 हो गई, है ना। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है उसके अलावा एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटू m, ठीक है, स्मॉल m। क्लियर? तो यहाँ पे देखो पाई बाय 4 वैल्यू है इसकी, पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू, तो n इक्वल टू क्या करेंगे हम, 2 पाई अपॉन पाई बाय 4। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, और m जो है वो क्या है, अभी उस m की वैल्यू क्या है, इस m की वैल्यू अभी क्या होगी, 1। ठीक है, इस m की वैल्यू चेंज कब होती है, जब इरेशनल वैल्यू, मतलब जब हमारा क्या हो रहा हो, ए पीरियोडिक आ रहा हो सिग्नल, है ना। जब ए पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, ये ए पीरियोडिक होगा तो हम इस m की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाय 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 8 पाई हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो पाई की वैल्यू अगर पुट करोगे तो वो रैशनल वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो गया, xn इज नॉन पीरियड। ठीक, मैं आपको इसके और क्वेश्चन दूंगी, आप सॉल्व कीजिएगा। हो पाएंगे ना सॉल्व भी क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, देखिए बेटा, कहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था, cos पाई बाय 3t प्लस साइन पाई बाय 4t, है ना, ऐसे डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, cos पाई बाय 3n प्लस साइन पाई बाय 4n। इसको भी वैसे सॉल्व करिए, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट करके, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट करके वैल्यूज निकालिए, एक वैल्यू आएगी n1 की, एक वैल्यू आएगी n2 की, फिर n1 बाय n2 करेंगे आप, क्या करेंगे आप, n1 बाय n2 करेंगे, तो आपको देखो सेम वैल्यूज मिलेंगी, n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 8। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब n1 बाय n2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, n नॉट इक्वल टू 24। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 देख सकते हैं। लीस्ट कॉमन एलसीएम आता है ना सबको, Yes, ma'am. हाँ, तो जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वही हमारा फंडामेंटल पीरियड होगा डिस्क्रीट में। क्लियर? Yes, ma'am. देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे क्वेश्चन, जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर टी था, वैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस स्क्वायर टी है। ठीक है, तो 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एन का फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 एन हमारा क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर दी हमने, पाई बाय 8 पुट कर दी, 1/2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाय 4 इंटू एन। पाई बाय 8 था, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 8 हो गया, तो पाई बाय 4 एन बच गया, है ना। अब इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लो। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट में फंडामेंटल पीरियड क्या है, n1 इक्वल टू 1, यहाँ पे डीसी जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर आप इसको देखोगे तो 1 बाय कॉस पाई बाय 4, तो 2 पाई बाय पाई बाय 4 कर दो। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, n2 की वैल्यू हो जाएगी 8,
ना, n2 की वैल्यू होगी 8। तो अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे n1 और n2 का तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो n0 इक्वल टू क्या हो गया, 8। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज क्लियर हुआ बेटा फंडामेंटल पीरियड। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट इज इवन सिग्नल्स एंड ऑड सिग्नल्स। ठीक है, अब देखो इन इवन सिग्नल a continuous time signal xt is said to be symmetric, है ना, इवन को हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं। So a continuous time signal xt is said to be symmetric even signal if it satisfies the condition, x minus t equal to xt for all t. Okay, that is our even signal. For example, xt equal to a cos t, xt equal to a cos t. And odd signal, a continuous time signal xt is said to be antisymmetric odd signal if it satisfies the condition x minus t equal to minus xt for all t. ठीक है, तो हमें ये दो कंडीशंस रिमेंबर रखनी है कि इवन सिग्नल की कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी, एंड फॉर ऑड के लिए क्या होती है x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी। ठीक है, okay. So any signal xt can be expressed as sum of even and odd components. ठीक है, अब अगर हम क्या निकाल रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं इवन और ऑड का, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। देखो जब हम इवन सिग्नल निकालते हैं किसमें, एक्स टी इक्वल टू एक्स ई टी प्लस एक्स नॉट टी। अब इवन सिग्नल कैसे डिफाइन करेंगे, इवन सिग्नल को कैसे लिखेंगे, एक्स ई टी इक्वल टू 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी, और वहीं ऑड में क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी, क्योंकि ऑड सिग्नल क्या होता है बेटा, माइनस क्या होता है ऑड सिग्नल, माइनस एक्स टी, एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी। ठीक है, तो इसीलिए उस वाले में क्या है, माइनस साइन है ऑड में, और इवन में हमारा प्लस साइन है। सो द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल xn कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशंस, है ना। तो जब हम इवन एंड ऑड पार्ट्स की बात करते हैं, इसके लिए डिस्क्रीट के लिए, तो जहां जहां भी बेटा हम t लिखते हैं उस पेज पे हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, t को किससे रिप्लेस कर देते हैं, t को हम रिप्लेस कर देते हैं n से। दैट इज अवर discrete time signal. Okay, clear? Yes, ma'am. Remember these formulas, that is most important for solving the even and odd signals numerical. So find the even and odd components of the following signals. xt equal to what, that is question, our question is what, xt equal to cos t plus sin t plus cos t sin t. Clear? Okay, so xt equal to what, xt equal to cos t plus sin t plus cos t sin t, and x minus t is what, for x minus t you have to put the minus sign
in all the t term. जहां जहां भी t है बेटा वहां पे भी हमने क्या कर दिया, अभी हमारे पास xt फंक्शन था, अब हमें x माइनस टी फंक्शन भी निकालना है क्योंकि हमें इवन और ऑड कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो x माइनस टी किया, तो x माइनस टी करने के बाद क्या किया, x माइनस टी करने पे जहां जहां भी क्या था t की टर्म थी वहां सारी टर्म की जगह क्या हो गया, देखो x माइनस टी किया तो क्या हो गया, x माइनस टी इक्वल टू cos माइनस टी प्लस साइन माइनस टी प्लस cos माइनस टी साइन माइनस टी। क्लियर? सो cos minus t equal to what? Cos minus t equal to cos t and sin minus t equal to minus sin t. Clear? Cos minus t equal to what? Cos minus t equal to cos t. मतलब cos minus theta equal to cos theta and sin minus theta equal to minus sin theta. ठीक? So our new signal x minus t is what? X minus t equal to cos t minus sin t minus cos t sin t. Clear? Yes, ma'am. With the help of these two signals xt and x minus t, we have to find the even component of the signal. So even component is what? X et equal to 1 by 2 xt plus x minus t. So we have to put all these values here. So what it is? 1 by 2 cos t plus sin t plus cos t sin t, है ना? ये put कर दिया, देखो cos t plus sin t plus cos t sin t. Okay? Plus cos t minus sin t minus cos t sin t. Clear? So sin t plus and minus sin t cancel out and cos t sin t minus cos t sin t is cancelled out. Only the term remaining is what? We have remaining the term is cos t and cos t. Okay? So that is 2 cos t and 2 and 2 is cancel out. Only even component is what? Even component is xt. Clear? Clear, ma'am. Okay. ऐसे ही आप क्या निकाल लीजिए, ऐसे ही आप निकाल लीजिए अपना ऑड कंपोनेंट, है ना। ऑड कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑड कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 1 by 2 xt माइनस एक्स माइनस टी, है ना। तो जब आप पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या हो जाएगा, देखिए cos t प्लस साइन टी प्लस cos t साइन टी। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो माइनस साइन आ गया, यहाँ माइनस साइन आ गया तो क्या हो गया माइनस कॉस टी प्लस जो था वो क्या हो, माइनस जो था वो क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया। तो क्या हो गया 1 by 2 2 साइन टी प्लस 2 कॉस टी साइन टी। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. क्या, तो ये हो गया आपका इवन और ऑड कंपोनेंट्स। ठीक, एक एग्जांपल लिखिए एक्स टी इक्वल टू 3 साइन टी प्लस 2 साइन 2 टी कॉस टी। लिखा? Yes, ma'am. है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कल हम पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल। हो पा रहा है सॉल्व?
अटेंडेंस भेजिएगा बेटा। मैम सेंड कर दिया आपको। ओके थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ग्रुप में आंसर भेजिएगा। Yes, Okay. ma'am.